Very good morning to all of you. We welcome you all to Shodh webinar on innovations and entrepreneurship, jointly organized by Sir PT Science College, Modasa, managed by the ML Gandhi Higher Education Society, Gujarat Council on Science and Technology, Guj Course, Community Science Center, Arvalli, Incubation Center, SSIT, and Essence Tech. This program is totally supported by Vyapar Jagat and ISTD, Indian Society for Training and Development. We welcome you all to the first talk, Can Entrepreneurship Be a Career? By Dr. Ronak Karia, Assistant Professor, Evan Pharmacy College, GTU, Ahmedabad. Okay, thank you so much. The technology definitely gets connected to all of us, and I'm very happy that I'll be sharing my knowledge with you, everyone. With my practical experience as a very young and dynamic personality. Uh, till date, I have conducted webinar on technical aspects, like how to conduct trainings in hospitals and various state level seminars. So there are technical sessions, but this is the first time where we are talking about entrepreneurship on this Zoom applications and webinar, which has been organized on innovation entrepreneurship by Science College and Pushkov and Community Science Center, Alvari, Incubation Center, SFIP, and Essential Tech. So basically, I would like to start with today's youth is completely focused on the entrepreneurship aspects. Each and everyone wanted to do something. आज हर किसी को कुछ ना कुछ करना है. I think the mix of audience I like to connect in English, Hindi and Gujarati. એટલે હું પોતે ગુજરાતી છું અને ગુજરાતી બહુ સારું આવડે છે અને ગુજરાતી અને હિન્દી તમને બધાને ખબર છે કે બધાને હિન્દી આવડતા હોય તો દોડ કે જ અમે ભાગ કે આતા લાઈક ધેટ. So basically બધાને ક્વેશ્ચન છે કે entrepreneurship career હોઈ શકે કે ના હોઈ શકે. So the answer is itself in the first slide. Yes, it is possible. But અત્યારે હાલ સ્ટાર્ટઅપ્સમાં આપણે બધા કેવું કરીએ છીએ? Let's just focus on કે I'll be the CEO, you be the CFO, you be the management officer, you be the implementation aspects. हम शुरू कर देते हैं वैसे कुछ ना कुछ. But आज reality देखें what is the startup scenario? Why entrepreneurship? Who can be an entrepreneur? The leadership, the motivation aspects, and so startup, like everyone is having some ideas in their minds. Okay, I really want to contribute something to society. I want to solve so many problems of the society, and everyone will want to do something, but they are trying their best. These are a couple of words you might have listened, like innovation, idea, motivation, B plan, business plans, finance, and team, stock market, and various so many things in the startup. How it starts with? Basically, it starts with initially nowadays there is even common word with the disruption we are knowing all about. What is disruption? हम जानेंगे आगे. क्या आप देख सकते हो कि taxi services initially in Mumbai you have to go to the nearby area or Char Rasta or the crossroads. Same in Ahmedabad to get the ID, to get the auto. You should move towards the nearby crossroads or nearby societies or the public places to get the autos. But nowadays, just on a single click, you get the Uber, Ola, and the rides also. Similarly, in grocery, you people nowadays, the youth or the people who are young and married people now, they just buy from the groupers and many other things. The youth read through various ebooks, various applications are available, Kindle is available. So books are completely converted into the ebooks. Even in the e-libraries are available, like Inflibinet is available in Gandhinagar, completely e-library. Hotel services, the Taj. Initially, we used to ask so many things, and later on, but nowadays, we are completely seeing the pictures of the hotels and various things just in our mobile through various applications. Shopping aspects is completely changed. We add the things which we wanted to buy, we add the things into the cart, and we can buy from various applications like Flipkart, Snapdeal, Myntra. On a single click, Domino's को हमने click किया, आ गया food, Zomato है, Swiggy है. News also we have WhatsApp University nowadays, Twitter है, LinkedIn है, सब कुछ YouTube है, and there are so many different ways. Initially it was just newspaper, but now the scenario is completely changed. Today also we are connected on Zoom application. This were the leading startups in somewhere.
ये जितने भी स्टार्टअप्स की बात करूँ ना, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर बिहाइंड द स्टार्टअप विद यंग माइंड्स, द यंग फेस हु मेड इट पॉसिबल. बट द सिनेरियो इज चेंजिंग. जो गुजराती में बात करूँ तो दुनिया में जीता जागता चालता हरता फरता बोलता भागता खाता पीता लाशो છે. यस, अगेन रिपीट. दुनिया में जीता जागता चालता हरता फरता बोलता खाता पीता लाशो फरती હોય છે. Why? Because in today's world, when a child is born, एक बच्चा जब जन्म लेता है अपने लाइफ में इस दुनिया के अंदर, तब he or she starts communicating. कुछ टाइम के बाद बोलना सीखता है. After वो चलना सीखता है, फिर प्री स्कूल जाता है, स्कूल कंप्लीट करके, स्कूलिंग कंप्लीट करके कॉलेज जाता है, कॉलेज करके फिर नौकरी ढूंढता है, फिर शादी करता है. सेम चीज अपने बच्चों को सिखाता है और ये वो एक दिन मर जाता है. बट द करंट वर्ल्ड इज कंप्लीटली चेंजिंग. The scenario is completely changing. Current world is completely changing. अगर मैं आप में से पूछता हूँ, if I ask you people, in this picture अगर आप ध्यान से देखो, there is an elephant. Elephant के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, the traditional dress of our India. अगर मैं आपसे पूछता हूँ, who is more powerful, an elephant or a man? If I ask you people, who is more powerful, an elephant और अ मैन? मैं आप सभी को पूछता हूँ, इन पिक्चर में सबसे पावरफुल कौन है? एलिफेंट है, हाथी है, या फिर इंसान जो उस पर बैठा है? तो તમને બધાને પૂછવા માંગીશ, આ ચિત્રની અંદર શક્તિશાળી વ્યક્તિ કોણ છે? હાથી અથવા તો જે હાથી પર બેસેલ છે? તમારા બધાના આન્સર્સ આવી રહ્યા છે કે મેન ઇઝ મોર પાવરફુલ. બટ ધ રિયાલિટી ઇઝ સમથિંગ ડિફરન્ટ. રિયાલિટીમાં વાત કરીએ આપણે તો હાથી એક શક્તિશાળી વ્યક્તિ છે. હાથી એક શક્તિશાળી પ્રાણી છે. એલિફન્ટ ઇઝ મોર ફાર સ્ટ્રોંગર દેન અ મેન. એલિફન્ટ ઇઝ મોર ફાર સ્ટ્રોંગર દેન અ મેન. બટ ધ મેન હેઝ ટ્રેન્ડ ધ એલિફન્ટ इन दैट वे कि आज एलिफेंट को लगता है कि नहीं है, मैन मेरा बॉस है, वो मेरा मर्चेंट है, वही मुझे वो जैसे बोलता है मुझे वैसे करना है, तो जस्ट फॉलो द मैन. और सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप इज द सेम स्ट्रक्चर. ओ मेरे फादर नहीं कर पाए, मेरे फादर बिजनेसमैन नहीं थे, तो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप में अपना करियर नहीं बन पाएगा, बिजनेस के अंदर मेरा अपना करियर नहीं बन पाएगा. सो यू हैव टू कम आउट ऑफ द बॉक्स. चीजों को, आपको मीट्स को फैक्ट से बदलना पड़ेगा. जो चलता आ रहा है उसे आपको हट के आना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा. डेफिनेटली एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर, बट मैन ने आपको स्ट्रॉन्गर बना दिया है वो ख्याली पुलाव से. ओके, ओके. देयर इज अ गाय कॉल्ड उदास सिंह जो हमेशा दुखी रहता है. देयर इज अ गाय कॉल्ड उदास सिंह जो हमेशा दुखी रहता है. देयर इज अ गाय कॉल्ड हैप्पी सिंह जो हमेशा खुश रहता है कि जो आएगा देख लेंगे, जो भी आएगा देख लेंगे. उदास सिंह कुछ भी सिचुएशन हो, हंसी की खुशी की दुख में रहता है. हैप्पी सिंह हमेशा खुश रहता है और कि जो भी क्या गल है भाई देख लेंगे, वॉट एवर हैपेंस विल सी. हैप्पी सिंह सीज इनटू इट. बट देयर इज समवन मोर. दैट इज, if you want to make your career into entrepreneurship, you should be a rocket Singh. We always say that Singh is king, but which kind of Singh? Udas Singh, Happy Singh, or Rocket Singh? The answer is very simple. That is a rocket. If you have seen the movie Rocket Singh, how he plans the thing, each and every small note. If he takes a pencil from the boss desk, he jot down. वो लिखता है बंदा कि वो पेंसिल कितने रुपए की थी. So that kind of minute planning should be there. If you want to do a career into entrepreneurship, you should be planning like a rocket thing. You should be a rocket thing. Definitely you should be happy कि दिक्कत आएगी देख लेंगे, लेकिन कब? प्लानिंग के साथ. A very good picture. अरे पलट तेरी खुशी इधर है. अरे पलट तेरी खुशी इधर है. It's all about which way you look. It's all about which way you look. If you're saying that there's one people standing in front of me and they're opposing me, I would just say turn around and take a mic and shout. Turn around, take a mic and shout. It is the way how you look, so you should update your version.
अभी मैं खुद की बात कर, रौनक कड़ी अच्छा 1.8, फिर 1.9, 1.10. आज आपको नॉलेज बढ़ाना है, यू शुड टेक योर नॉलेज. There's a small picture. You should पहचान, आपको पहचानना है कौन है वो. ठीक है. हनुमान. Yes, Krishna has given the first answer. दूसरा है तो हनुमान. अभी महाभारत चल रही है, रामायण सीरियल आ रही है, तो आपको एक कैरेक्टर मैंने वहां से लिया हनुमान. When लक्ष्मण हनुमान बोला था to get the medicine from this mountain. हनुमान went, हनुमान couldn't identify the medicine. हनुमान जी को पता नहीं चला कौन सी सही दवा है, so वो पूरा पर्वत लेके आए. So he brought the whole mountain. So it was a mistake which he made, but it was a partial mistake. उन्होंने गलती की थी लेकिन वो आधी गलती थी. उन्होंने गलती की थी लेकिन वो आधी गलती की. He made the mistake, but it was a partial mistake. From that mountain, you can identify the medicine. The doctor could identify the medicine. वहां के वेद जी उस माउंटेन, उस पर्वत में से वो दवा खोज सकते थे. अब आपकी मैं बात करूं, आप सबको सबसे पहले अपने आप को जानना है. If you really want to start with your entrepreneurship as a career, you should know yourself. Start thinking about yourself. मैं कौन हूँ, मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे कहाँ बढ़ना है. A very good शायरी. मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. हम कॉलेज के लास्ट ईयर में होते हैं तो बच्चों को एक ही चीज सिखाई जाती है कि लेट्स प्रिपेयर फॉर अ जॉब. आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वही सिखाया जाता है. आपको क्या बोलना है वही सिखाया जाता है, लेकिन क्या सोचना है, कैसे सोचना है, that is completely different thing. And nowadays if you are talking about entrepreneurship, so abhi still it is not in a remote areas. So I'm trying my best to explain that. Okay, अगर आपको बिजनेस करियर बनाना है, entrepreneurship start करनी है, how can you start? Just see the practical area. COVID-19. CO stands for Corona, VI for virus, D for the disease, and 19 is for 2019. So this is how coronavirus, this is 2019, ऐसे उसका नाम रखा गया है. अभी इंडिया का सिनेरियो देखे और अदर कंट्रीज. सो हमारी एक नेबरिंग कंट्री चाइना, वुहान से जहाँ ये वायरस आया है, अगर हम उसकी बात करें, सो चाइना को अराउंड 10 to 11 days लगे थे 1000 बेड की हॉस्पिटल बनाने में. उन्होंने पूरी हॉस्पिटल नई कंस्ट्रक्शन की थी. जहां इंडिया ने कि जो पार्किंग लॉट्स है अहमदाबाद के अंदर जो अभी खाली पड़े हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और द कर्फ्यू, उन्होंने उस पार्किंग को हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया. दे कन्वर्टेड द पार्किंग, द कार पार्किंग इनटू द हॉस्पिटल. તે બધા પાર્કિંગ ને હોસ્પિટલમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યા. સેકન્ડ, જેટલી રેલવે ને પાર્કિંગમાં કન્વર્ટ, સોરી આઇસોલેશન વોર્ડ્સમાં કન્વર્ટ કર્યું એ લોકોએ. જેટલા પણ રેલવે છે એ લોકોએ બધાને કન્વર્ટ કરે આઇસોલેશન વોર્ડની અંદર. સિમિલરલી they have also converted the hostels, the staying hostels of various institutes and universities into isolation rooms, quarantine rooms. So what is this? This is a bootstrap concept. This is a bootstrap concept. आपके पास जो भी हो उससे शुरू करो. आपके पास जो भी हो उससे शुरू करो. તમારી જોડે જે છે એનાથી શરૂઆત કરો. Don't expect. अगर एंटरप्रेन्योरशिप को करियर बनाना है तो आपके पास जो भी चीजें हो उससे शुरू कर दो. कि मेरे पास 1000 रुपए है, यू कैन डू बिजनेस में 1000 रुपीज. इफ यू 1 लाख रुपीज, अरे मेरे को तो कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करनी है, मेरे को वो करना है, ये करना है. डोंट क्राई. वॉट एवर यू हैव, बूटस्ट्रैप. लाइक ढूंढो अपने घर में कि आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है और मैं उससे बिजनेस कैसे कर सकता हूँ. एज आवर कंट्री हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है. सारे डिपार्टमेंट ने, यूनिवर्सिटीज ने, रेलवेज ने, सबने बूटस्ट्रैप कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है. मतलब आपके पास जो हो वो आप करो. अगर बिजनेस शुरू करना है आपको, तो सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए आती है. अगर आप अपने आप को मैनेज कर पाए, अपने आप को सही तरीके से जाने, तभी आप बिजनेस कर पाओगे, तभी भी आप नौकरी कर पाओगे.
हम बात करें कि हम लोग बहुत प्रिटेंड करते हैं. આપણે હ્યુમન બીંગ છે ને બહુ પ્રિટેન્ડ દેખાવ બહુ કરીએ છીએ. અમે ગુજરાતી તો ખાસ કરીને બેઝિકલી આપણે જો बात करिए तो गुज्जू पीपल शो ऑफ अ लॉट थिंग्स बेसिकली. हम लोग घर में कुछ अलग होते हैं, कॉलेज में अलग होते हैं, स्कूल में अलग होते हैं, अपने जॉब प्लेस पे कुछ अलग होते हैं, और आपके फ्रेंड्स के साथ अलग अलग होते हैं. मतलब हम हर बार अलग अलग टोपी पहनते हैं और ये टोपी हम दूसरों को भी पहनाते हैं कभी ना कभी. बट यू शुड प्रेज योरसेल्फ. आपके पास जो भी है आप देखो कि फ्यूचर क्या आने वाला है आपके पास. ऐसा नहीं है कि भाई फीमेल्स ऑलवेज लुक देमसेल्फ ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ है नहीं. इट्स जस्ट फॉर शोइंग अ पिक्चर. इट इज सेम विद द मेल आल्सो. यू शुड प्रेज योरसेल्फ, यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ. आपके पास जो भी है उसमें फिलहाल खुश रहो. इन फ्यूचर डेफिनेटली आई विल गेट दिस एंड ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ इन अ मिरर. इन फ्यूचर डेफिनेटली आई विल मेक इट आउट. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड. सबको दुनिया बदलनी है, बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. बट कोई भी इंसान अपने आप को बदलने की बात नहीं करता. सो द फर्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जो भी करना है आपको करना है वो आपके हाथ में ही है. Whatever you wanted to do, it is in your hand. It is in your arm. Arm stands for awareness, realization and maintaining. तो इसका फुल फॉर्म है अवेयरनेस, रियलाइजेशन एंड मेंटेनिंग. इसके अंदर ये पीपीटी देखने के बाद आप थोड़ा अवेयर हो जाओगे. यू विल बी गेट अवेयर कि नो, हम लोग शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस. हम उसे मेंटेन भी कर पाएंगे. Until and unless you don't realize the reality, until and unless you don't realize the reality, it is not possible. वास्तविक एंड जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो आप रियलाइज नहीं कर पाते, उसे आप प्रॉपर्ली इवोल्यूट नहीं कर पाते, then there is no meaning. There is self evolution necessary at each and every step. अब आपको खुद को जानना है. So let's start with the understanding oneself. आप सबके लिए एक होमवर्क है, बेसिकली आप कर सकते हो घर पे. आपको एक टेबल बनाना है. जोरी विंडोज आप गूगल में लिखोगे आपको इजीली मिल जाएगा. आई नो मतलब मुझे क्या पता है जो दूसरों को नहीं पता. दूसरी चीज, आई नो व्हाट अदर्स नो एंड आई डोंट नो व्हाट अदर्स नो एंड आई डोंट नो व्हाट अदर्स आल्सो डोंट नो. तो लास्ट फोर्थ कॉम्पोनेंट जो फोर्थ स्क्वायर है वो शायद आप फिल ना कर पाओ, लेकिन बाकी के तीन तो आप कर ही पाओगे. तो आपको इससे आइडिया आएगा कि मुझे क्या सीखना है बिजनेस के लिए. यू गेट अ रफ आइडिया व्हाट शुड आई लर्न टू स्टार्ट अ बिजनेस. दिस इज अ वेरी गुड चार्ट. इट्स अ वेरी बेसिक एंड सिंपल चार्ट. इनोवेटिव थिंकिंग. आप कोई भी मूवी देख लो, चाहे वो कॉमेडी हो या फिर ड्रामा हो या फिर रोमांटिक हो या फिर थ्रिलर हो, हर किसी में इक्विपमेंट्स में कहीं ना कहीं चेंज आता है, एक ट्विस्ट आता है. सिमिलरली इन बिजनेस ईच एंड एवरी स्टेप इज ऑल अबाउट ट्विस्ट. आपकी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना है सबसे पहले. अगर मैं आपको बोलूं देयर आर 9 डॉट्स एज यू सी इन द स्लाइड, एज यू सी इन द पिक्चर, you should place your pen in such a way that all the 9 dots get connected and there are only 4 chances. So आप लोग सोचोगे कर पाऊंगा, मैं कैसे करूंगा. आप बहुत ट्राई करोगे, बट अभी हम ये जूम पे है तो मैं उतना आपको टाइम नहीं लूंगा. आई जस्ट शेयर द आंसर. सी, आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके थिंकिंग तो करना ही पड़ेगा. यू शुड हैव दैट क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, द लेटरल थिंकिंग. अभी थिंकिंग के कंसेप्ट बढ़ रहे हैं. सो ये सारे थिंकिंग प्रोसेस में आप कहाँ पे आते हो आप खुद को जज करना है. थिंकिंग का पूरा एक डे होता है सेशन का, जो हम कभी बाद में लेंगे. बट अभी हम फोकस इतना करते हैं कि कुछ भी काम करना प्रोसेस, आपके प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, आपके विचारों को बदलना पड़ेगा. हम लोग डरते हैं कि हम लोग फेल हो गए तो क्या होगा. जैसे मैंने पिक्चर दिखाया था हनुमान जी का, आई शोड यू पिक्चर ऑफ हनुमान जी. He didn't thought so what will happen if I carry the whole mountain. उन्होंने नहीं सोचा था कि पूरा माउंटेन ले जाऊंगा होगा. If I take a whole mountain, what will happen? He didn't thought and he made it and everyone was happy with his decision.
सो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो सबसे पहली चीज, आपको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करियर बनाना है, लेकिन द मोस्ट प्रॉब्लम विच आई सी नाउअडेज, पीपल हैव आइडियाज कि सर एक आइडिया है, इतना बड़ा है, इट कैन चेंज द होल वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया के बदलने की बात करते हो और अपने आइडिया को यू लव एज योर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। द बिगेस्ट मिस्टेक इज आइडिया को दे स्टार्ट लविंग एज ए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, द बिगेस्ट मिस्टेक। फिर एक आइडिया आता है, फिर उसे आप छोड़ देते हो, फिर उसके बाद आपको कई सारे आइडियाज आते हैं, यू गेट मिलियंस ऑफ आइडियाज। तो आपको क्या करना है, जब एक आइडिया आना शुरू करे तो नोट और पेपर लो, टेक अ पेज एंड द पेन एंड जॉट इट डाउन, जस्ट जॉट इट डाउन द होल आइडिया। Once you start working on it, once you start googling on it, you will feel I have another idea also. You will start thinking about second idea, third idea, fourth idea, fifth idea, and the process goes on. So prepare an idea bank. Whatever you have, सारे ideas को एक दिन बैठो and jot down. Jot here all your ideas on a paper. सारे ideas. And afterwards, filter the idea. Simple as that. Shoot. Because there are so many ideas which are not possible in realistic manner. घना बदा ideas practical scenario में possible थी। अच्छा, मेरे को दूसरा Amazon बनाना है. You can make, but there will be a huge amount of marketing cost. So is it possible at this moment of time? No. अच्छा, मुझे Reliance बनाना है. Is it possible? No. Okay, I'm from a pharma. I want to start a pharma company. No, it is not possible. So आप सारे ideas लिखो, but उसमें से realistic, practical and the first possible idea. Realistic, practical, the first possible idea कौन सा है वो आप देखो. I request all of you कि whenever you have more amounts of ideas, आपके पास काफी सारे ideas हो गए अभी कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, एंड बहुत सारे आइडियाज. तो सारे आइडियाज लिख दो. उसके बाद आप किसी एक आइडिया पे, सिर्फ एक पे फोकस करो. ये स्लाइड में देख सकते हो कि एक जो आइडिया है जिसकी पिक्चर की साइज कम है, फिर आपने आइडिया बैंक बनाए जिसके अंदर बहुत सारे आइडियाज है, और लास्ट में आपने एक आइडिया फाइनलाइज किया कि उसकी पिक्चर की साइज ज्यादा है. मतलब आप जब एक आइडिया फाइनलाइज करोगे तो यू विल बी फोकस्ड, यू विल बी वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है, मेरे टारगेट ग्रुप कौन सा है, कस्टमर कौन है, मेरा कंज्यूमर कौन सा है, फाइनेंस कौन देगा, व्हाट इज द रोड मैप, व्हाट इज द एग्जीक्यूशन प्लान. सो मेनी थिंग्स यू विल गेट अ वेरी क्लियरिटी. बट द बिगेस्ट चैलेंज, इफ यू रियली फील दैट you can be a businessman or you can be an entrepreneur, अगर आपको सही में लगता है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो या फिर एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, तो आपको अपने आइडिया को बिजनेस प्लान के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. Then you need to convert your whole idea into the business plan. No one is interested in your idea. No one is interested in your idea. पूरी दुनिया में किसी को आपके आइडिया के अंदर की कोई भी प्रकार का रस नहीं है. नो वन इज इंटरेस्ट. किसी को बिल्कुल इच्छा नहीं है आपके आइडिया के अंदर. until and unless you don't convert your idea into a business plan. अगर उसके अंदर कुछ पैसा है, then only people are interested. Then only the businessmen are interested. Nowadays the technology has been changed. The investor ask कि आप 10 स्लाइड्स के अंदर मुझे आपका बिजनेस प्लान का पावर पॉइंट भेजो. सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्लाइड कॉपी करते, वहां से करते. सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कम से कम स्लाइड रखो. बी स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज इन योर बिजनेस प्लान, और छोटी से छोटी सी प्लान करो. प्लानिंग कैसे करना है हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, करियर बनाना. एंड क्विकली 3 से 5 मिनट के अंदर हम स्लाइड शेयर मैं आपको करूंगा. इट विल बी वेरी हैप्पी एंड आपके थॉट प्रोसेस को वो चेंज करेगा. सो विल मूव फॉरवर्ड.
तो प्लानिंग करना है, आइडिया को बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करना है, सो कैसे करेंगे? इट इज वेरी सिंपल। प्लान लाइक पिरामिड्स। आपने सबसे पहले स्टेप किया कि आइडिया से आइडिया बैंक से वापस एक आइडिया किया, एक आइडिया फाइनलाइज किया, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आपने बूटस्क्रैप किया। आपके पास जो चीजें अवेलेबल है उसको बूटस्क्रैप किया, फिर आप प्लानिंग शुरू करोगे। सो कहा जाता है कि प्लान लाइक अ पिरामिड्स, प्लान लाइक अ पिरामिड्स। अब पिरामिड के टॉप पे जो बंदा या बंदी होगी, ही और शी कैन सी द होल पिरामिड इजीली। एंड इट इज अ वेल नोन सेइंग, दुनिया में कहावत है कि वेल प्लान इज हाफ डन। अगर प्लानिंग परफेक्ट है तो आधा काम हो गया। वेल प्लान इज हाफ डन। यहां से आपका सेशन शुरू होता है। अब तक थोड़ा बहुत मोटिवेशन था कि एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कैसे किया जाता है, थोड़ा बहुत था। सो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप। और हर दिन यहाँ पे इतने सारे स्टार्टअप्स आते हैं, नंबर दे सकते हो 4200 प्लस। एंड इफ आई से कि इंक्यूबेटर्स कितने बढ़ चुके हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्यूबेटर्स हैज बीन इंक्रीज ड्रास्टिकली। एंड फंडिंग्स कितना सारा आ रहा है, और आज कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, मोर देन 85,000 पीपल अप्रोक्सीमेटली। ये लास्ट जो डेटा है वो 2016 का है। पहले कैसा था कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स से देयर वर स्टार्टअप्स पॉसिबल, इंटरनेट हो, आईटी हो, बट आज नॉन टेक्निकल सेक्टर्स में भी स्टार्टअप पॉसिबल है, लाइक फूड डिलीवरी, ग्रोसरी, होटल्स। एंड नाउअडेज इन 2019 एंड 2020 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी स्टार्टअप्स पॉसिबल है। हमारी इंडिया के अंदर इसी से इंडियन गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इन होल कंट्री विद सपोर्ट टू स्टार्टअप इन द हाईएस्ट अमाउंट, विद सपोर्ट टू स्टार्टअप इन द हाईएस्ट अमाउंट। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान बना 2016 में, एकेडमिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स हुई, टाइमलाइंस बनी, 3 साल के अंदर हमने देखा कितना प्रोग्रेस कर लिया है। तो सिंपली क्या था कि आपको मेंटरशिप का सपोर्ट मिलेगा, फंडिंग का सपोर्ट मिलेगा, और आपको एकेडमिया और इंडस्ट्री का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अंदर आपको एकेडमिया, इंडस्ट्री का सपोर्ट भी मिलेगा। सो यू विल गेट डिफरेंट थिंग्स इन दिस नाउअडेज। सो अगर मैं बात करूं की इनिशिएटिव से, इतने सारे की इनिशिएटिव स्टार्टअप्स के अंदर हुए थे, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस मिला था, कि आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस भी मिलेगा और एग्जिस्टेंस में मिलेगा, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आजकल का यूथ स्टार्ट करता है स्टार्टअप, तो सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि अरे इस ऑफिस में जाना है, उस ऑफिस में जाना है, एक्स्ट्रा मतलब हर जगह जाना है, बट ऐसा नहीं है। सबके अंदर एक सिंगल विंडो बनाया गया ऑन द बेस्ट भी। थिंग थी कि सेल्फ सर्टिफिकेशन था। यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन यानी खुद को गारंटी, एक पेपर लेटर हेड पे साइन करके देना है कि इतनी चीजें हम खुद करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इनकम टैक्स में भी एग्जम्पशन था फॉर द इनिशियल 1000 डेज फॉर 3 years नियर बाय। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द गुजरात स्टेट की अगर मैं बात करूं, सो अहमदाबाद was an emerging city for the startup as per the NASSCOM newsletter, and National Council of Applied Economical Research ने भी कहा था कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडिया के अंदर ज्यादा है, and Gujarat is playing a very vital role. These are the couple of factors which you can see out. इसके अंदर जो मैंने पर्सनली विटनेस किया है वो ऑल इवेंट्स है। आई हैव पर्सनली विटनेस द ऑल इवेंट सक्सेस। मैं कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, एंड आप कोई भी इवेंट देखो ऑल इवेंट्स पे आ जाता है, बट द रियलिटी इज दैट कि इन सभी रेवेन्यू मॉडल कुछ अलग होते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना है, जो दिखता है वो होता नहीं है। रेवेन्यू मॉडल हर किसी का अलग अलग होता है। गुजरात के अंदर अगर आपको बिजनेस करना है, सो हाउ इट विल बी पॉसिबल? सबसे पहले यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बहुत है। गुजराती એટલે કે बिजनेसमैन કહેવાય, ધંધાવાળો વ્યક્તિ કહેવાય છે। आपको मेंटर्स भी बहुत मिलेंगे हमारे जैसे, दोज हु हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ अ फेलियर्स। हमारे पास फेलियर का पूरा एक बैग है, लॉट्स ऑफ फेलियर्स है हमारे पास। देन इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स मिलेंगे, फंडिंग एजेंसीज मिलेगी आपको, एंड आपको गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट करती है। नाउ
ज्यादातर गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर देखिए जितने भी स्टार्टअप की बॉडीज है वहां पे यंग माइंडेड एंड वेरी लाइक माइंडेड पीपल्स हैव बीन प्लेस्ड. So if you want to do a business in a state like a Gujarat, it is possible because these five things can make it possible. Because these five things can make it possible. Mentors. सबसे बड़ी गलती आप बिजनेस में ये करते हो. आपको क्या लगता है मैं कर लूंगा, मेरी अच्छी टीम है, हम लोग यंग लोग हैं, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है. We should have the real mentors. जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, दे टेल यू द रियलिटी, दे गाइड यू, दे होल्ड योर हैंड, दे आर द अम्ब्रेला टू यू पीपल. आपको सही मायने में मेंटर्स चाहिए. अगर आप बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, सो यू शुड हैव अ मेंटर ऑलवेज. बिकॉज आप कभी भी कोई भी बिजनेस करते हो, देयर इज अ क्लियर फैक्ट दैट you will be not able to cover each and every angle. You will not able to cover each and every angle. So आप जब mentor choose करोगे, it might be from academics, it might be from the industry, it might be from the innovation ecosystem, startups and experienced people. But you should have mentors from the same discipline, other discipline also, or I can say multiple disciplines. Mentors की भी बात करूँ, so there are millions of organizations are available. IIM, IIT, NIT, GTU, GU, TAP University है. मतलब there are hundreds of partnerships are going in our country and mentors काफी सारे available है. There are so many mentors which are available. Even आज अगर बात करें तो Facebook, Instagram, सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको आंसर्स मिलते हैं. ये 2018 का लिस्ट है मेरे पास नोडल इंस्टीट्यूट्स का, जहाँ पे दे प्रोवाइड अ बेसिक startup supports to each and every organization. अब इतना सपोर्ट मिल रहा है, so why not to do a business? Why not to make a career into entrepreneurship? अगर गुजरात की बात करें, so startup policies है हमारे पास SSC स्टूडेंट्स के लिए. लोकेशन काफी बढ़िया है. इंफ्रास्ट्रक्चर के वे में गुजरात है ड्रेस्टिकली चेंज. ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है. फंडिंग्स बहुत है गुजरात के अंदर. फार्मा सेक्टर में, IT सेक्टर में बहुत फंडिंग है और स्टेट का इकोनॉमिकल ग्रोथ कंट्री में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड यहाँ पे नॉट ओनली गवर्नमेंट बॉडीज, नॉट ओनली इंडस्ट्रीज, नॉट ओनली एकेडमिक्स, बट प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस also have their incubation centers. अगर मैं बात करूँ, ये डेटा 2016 का है कि स्टेट गवर्नमेंट ने 97 करोड़ रुपीस फंड किया था एंड स्टार्टअप के लिए काफी सारा फंडिंग रिलीज हुआ था कि मार्केटिंग के लिए इतना फंड, पब्लिसिटी के लिए इतना फंड एंड वेरियस काइंड ऑफ थिंग. पहले क्या था कि इतने ही सेक्टर्स में पॉसिबल था, बट नाउअडेज देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स व्हिच आर कमिंग इन मल्टीपल सेक्टर्स. एक से ज्यादा सेक्टर कनेक्टिविटी, हेल्थ एंड IT. अभी हेल्थ एंड IT का जो कॉम्बो है बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है. देन बायोटेक एंड IT, देन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी. एग्रीकल्चर एंड रोबोटिक्स का भी आज काफी अच्छा. So you cannot imagine also the person who have education in pharma is going to IT to change the health scenario. मतलब आप सेक्टर से कंपाइल करो, सिनेरियो से कंपाइल करो, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे. ये एक बेसिक पिक्चर है. मुझे तो इस पिक्चर में उतना बहुत थोड़ा बूस्ट किया, मोटिवेट किया है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, बट यू नेवर नो व्हाट कुड बी द रियलिटी. स्टार्टअप की लाइफ साइकिल को इमेजिन करना बहुत टफ होता है. ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट शू साइज. हर स्टार्टअप की शू साइज अलग अलग होती है. एवरी पूरी इज डिफरेंट. सो यू कैन नॉट से कि आप इस स्टेज पे पहुंचोगे तो आपको इतना फंडिंग मिल जाएगा, आप इस स्टेज पे पहुंचोगे तो आपको इतना फंडिंग मिल ही जाएगा. आई कैन नॉट से दैट थिंग. दैट इज कंप्लीटली वेरीज फ्रॉम स्टार्टअप टू स्टार्टअप. So if you really want to make your career into entrepreneurship, आपको बिजनेस करना ही है, so first thing which you should keep in mind कि आपके पास एक अच्छा सा बी प्लान होना चाहिए. हम क्या करते हैं, अच्छा let us start preparing for a business plan. Business plan, the timeline of 1 month to 6 months. You should have a long-term vision of 5 years. सबसे important चीज, you should know who would be your first customer and who would be your 100th customer.
आपका पहला कस्टमर कौन होगा और आपका 100 नंबर का कस्टमर कौन होगा? You should know who would be your first customer. You should know who would be your customer. आपका पहला कस्टमर कौन है, 100 कस्टमर कौन है, उसके बाद कस्टमर के अंदर में स्केलेबिलिटी। अच्छा, इस ज्योग्राफिकल लोकेशन से मेरे इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं दूसरी ज्योग्राफी में कैसे जाऊं? हाउ शुड आई गो इनटू द अनदर ज्योग्राफी? आपको क्या करना है? बेसिकली आपको एक टीम चाहिए, आपको मेंटर चाहिए, आपको आइडिया चाहिए, आपको एक ऑफिस चाहिए, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए और कुछ इंटर्न्स चाहिए जो आपके साथ काम करें। बिजनेस करना अकेले की बस की बात नहीं होती है। यू शुड हैव अ गुड टीम, अ टीम हु हैव अ वेरी सेम विजन। आपके जो लीड करता है उस विजन का इंक्लाइन करना पड़ता है। कई स्टार्टअप से कुछ लोगों ने इनिशियली अकेले स्टार्ट किया था। यस चिंतन सर। हेलो। Yes, you are audible, sir. ओके। काफी सारे स्टार्टअप ने इनिशियली अकेले स्टार्ट किया था, बट एज दे प्रोग्रेस, जैसे आगे बढ़े, दे मेड अ टीम। उन्होंने Yes, sir. जैसे जैसे आगे बढ़े उन्होंने एक टीम बना ली थी। सो यू शुड हैव अ टीम। टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ऐसी टीम बनानी है जो जहां पे हर कोई अचीव कर पाए अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। ईच एंड एवरी पर्सन हैव अ प्रोफेशनल गोल। प्रोफेशनल गोल फॉर अ पर्टिकुलर टाइम वो सेम हो सकता है। प्रोफेशनल गोल फॉर अ पर्टिकुलर टाइम वो सेम हो सकता है, लेकिन पर्सनल गोल की मैं बात करूं, ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट पर्सनल गोल। सो आपको ध्यान रखना है जब टीम बनाओ, सो प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल गोल दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। બિઝનેસ કરવો છે, આઈડિયા છે મારી જોડે, પણ જ્યાં સુધી તમે લોકો કોઈ કંપની કે સેક્શન 8 કંપની નહીં બનાવો તો કોઈ મીનિંગ નથી। ધંધો કરવો છે, આઈડિયા સર્કિટમાં નીકળી ગયા, પણ તમારી જોડે પોતાની કોઈ વજૂદ નથી। આજે રોનક કડિયા કોણ છે? હુ ઇઝ गिरीश पटेल सर? हु इज केपी पटेल सर? पीपल विल नो यू थ्रू अ कंपनी। आपको एक खुद की कंपनी बनानी है, खुद की ब्रांड बनानी है। कोई प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, वो एलएलपी हो सकती है, सेक्शन 8 हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट हो सकती है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के जाना है तो एनजीओ हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, और कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स उसके लिए जो भी चाहिए। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने एनलिस्ट कर दिए है, एंड इसमें से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं जो आई कैन हैव अ वेरी क्लियर लुक, कि सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने एनलिस्ट किए यहाँ पे। सो सबसे पहला, अगर आपके पास आइडिया है, टीम है, सो गो फॉर इट। कंपनी बनाना कोई खर्चा नहीं है, ट्रस्ट बनाना कोई खर्चा नहीं है। तो आप ये जो चार्जेस मैंने लिखे वो अहमदाबाद के चार्जेस अगर आप किसी कंसल्टेंसी को देते हो तो, लेकिन लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, व्हेन आई मेड अ सेक्शन 8 कंपनी, आई जस्ट मेड इन लेस देन 4000 रुपीज। यस, व्हेन आई मेड एन एनजीओ, मैंने एक ट्रस्ट बनाया था, तब मैंने हार्डली वो 3500 रुपए में बनाया था। इट जस्ट कॉस्ट मी 3500 रुपीज बैक बिफोर अराउंड 4.5 years। 4 साल 10 महीने हो गए, वो मैंने खुद बनाया था। तो पीपल, यहाँ से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की करियर की जर्नी शुरू होती है। अगर आप कंसल्टेंसी को दे देते हो, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट रह जाते हो। તમે કોઈ વચોટિયાને આપી દો છો કામ કરવા માટે, જે સરકારી ઓફિસની બહાર ફરતા હોય છે, એટલા માટે તમે કોના પર ડિપેન્ડ થઈ જશો। એ તમને 10 માંગશે, 12 માંગશે, 5 માંગશે, તમે બાર્ગેનિંગ કરશો, यू विल बार्गेनिंग विद देम कि भैया कम करो, स्टार्टअप है, हम लोग यूथ है। तो इट्स ए कंप्लीट सिनेरियो। अगर आप खुद करोगे, वंस यू विल मेक योर कंपनी बाय, खुद इसका फॉर्मेट डिजाइन करो, ट्राई करो, गूगल करो, पुरानी जितनी कंपनीज बने उनके फॉर्मेट देखो, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो यही से शुरुआत होती है। नेक्स्ट वुड बी, आपके बिजनेस प्लान के अंदर किसे कौन इन्वेस्ट कर सकता है? देयर आर 3 people who can invest in your business plan। उन तीनों का नाम एफ से शुरू होता है और दे स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेटिकल वर्ड एफ। फर्स्ट इज फ्रेंड्स। कहाँ जाके दोस्तों को संभाल के रखो, दोस्त काम में आएंगे कब? कि आपके बिजनेस के अंदर वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं।
Friends have a trust on each other. सबसे पहले would be the friends. The second would be the family members. Who will invest in your business? The first would be friends. Second would be the family members. काका काकी मामा मम्मी मासा मासी दादा दादी पापा मम्मी भाई बहन anyone. It could be anyone who is your well-wisher, who is close to you. Who is close to you. And the third one, the fools. 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 જેટલા પણ ઇન્વેસ્ટ એક યુથના સ્ટાર્ટઅપમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય બધા ફૂલ્સ હોય. દુનિયાની કડવી હકીકત એવી છે કે દુનિયા માટે તમે ફૂલ છો અને તમારી માટે એ સામેવાળો વ્યક્તિ ફૂલ છે. યસ, ધીસ ઇઝ અ રિયાલિટી એન્ડ એક્સેપ્ટ ઇટ. તમને ત્રણ પૈસા આપશે, ફેમિલી એન્ડ ફૂલ્સ. There are two kinds of investors basically. One, કે જેની અંદર લાખોમાં રૂપિયા અને એ લાખોમાંથી 50 લાખ રૂપિયા હોય તો 5 લાખ રૂપિયા આપીને એની અપેક્ષા કરોડ સુધી પહોંચવાની. So એમને 5 લાખ રૂપિયા જતા રહેશે. They will cry a lot. Oh my God, I lost 5 lakh rupees. The second would be the people who are having crores of rupees. People who are having crores of rupees, इनके पास पैसा बहुत सारा है, करोड़ों में है. उनके लिए 10-15 लाख देना कोई बड़ी बात नहीं होती. For them, giving 10-15 lakhs is never a big deal. But why they are interested in your startups? Why they are interested to make you a business? Until and unless your idea don't have a return on investment, no one is interested. Until and unless people don't have your business, no one is interested. Okay, so आपके बिजनेस के अंदर रिटर्न्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपको टाइमलाइन के अंदर आप जितना भी इन्वेस्ट करते हो उसमें रिटर्न्स नहीं आते तो उतना इंटरेस्ट नहीं है. आजकल जितने भी एंटरप्रेन्योर अहमदाबाद गांधीनगर के अंदर, so they are less interested in social entrepreneurship. They are less interested in social entrepreneurship because the ROI, the returns on investments are comparatively less. There are very few people like Ratan Tata sir and Adani Group and Reliance Group who have an inclined vision towards the CSR. Very less organization have a vision of CSR policies and various such kinds of things. So social entrepreneur हमारे एक समाज माटे करવું છે. जैसे मैं अभी एमएल गांधी जब मैं था अभी दिन पहले, I saw a very good startup. वहां पे 11th standard में एक लड़की पढ़ती थी. There was a girl who was studying in 11th standard. She is producing a device which can measure the frequency of sound in patients like cerebral palsy. सीपी के जितने भी पेशेंट्स है उसके अंदर साउंड, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी मेजर कर पाए. आपकी जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो मेजर कर पाए. The startup is really big. She has presented to various national, international platforms. She has won the prize. And इस स्टार्टअप के अंदर उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसलिए था कि हर एल्डर सिस्टर या फिर यंगर सिस्टर, आई डोंट रिमेम्बर, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल प्लासी. उसकी बड़ी या छोटी बहन को ये बीमारी थी, उसीलिए इसको इतना स्टार्टअप में इंटरेस्ट था. यानी कि अगर आप स्टार्टअप को आपका पर्सनल फील नहीं दे पाओगे, देयर इज नो मीनिंग. अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे पाते तो कोई मीनिंग नहीं है. गवर्नमेंट्स की ग्रांट्स काफी है. आजकल स्कूल कॉलेज के अंदर वर्किंग स्पेस है. आपके मॉम डैड के नौकरीમાંથી ઊંચા નતા આવતા, લોન નથી મળતી, ના આવા બધા પ્રશ્નો હતા. Nowadays you get working and co-working space in your institutes, in private organization. लोन मिल जाती है. There are so many banks which are coming up with. If I talk about this policies, अब ग्रांट की मैं बात कर रहा हूँ. This is the data of 2019. This is at the India level. This is at the India level. And the last column आप देख सकते हो, that is taken by one
एक इंक्यूबेशन सेंटर उतना ले सकता है. And a single incubation center can mentor so many people, so many mentees. अगर मैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर की बात करूं, AIC या अटल टिंकरिंग लैब जो स्कूल्स के अंदर होती है, so it has drastically changed the meaning of entrepreneurship, the meaning of business. आज काफी छोटे बच्चे फिजिक्स के लैब्स के अंदर जो अच्छा सा प्रयोग करते हैं, जो अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करते हैं इन अ वेरी फॉर्मल मैनर, इट रियली साउंड्स गुड. So, इतनी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट से इतनी ग्रांट्स अवेलेबल है, एंड यू कैन हैव अ लुक एट देयर वेबसाइट्स. ईच एंड एवरी थिंग इज इन ट्रांसपेरेंट मैनर. आप वेबसाइट पे एक बार जाइए, 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, आप स्टडी करिए, आपको मिल ही जाएगा. फिर कुछ स्पेसिफिक ग्रांट्स भी है. आपको डिस्कवरी करनी है ड्रग्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, तो भी अवेलेबल होती है, बट स्टिल इट इज इन प्रोसेस. देयर आर थिंग्स आर मॉडिफाइंग. नेशनल इनोवेशन काउंसिल भी है, न्यूमरस अमाउंट ग्रांट्स देता है. आईटी सेक्टर्स के अंदर काफी सारी ग्रांट्स अवेलेबल है, पेटेंट्स अवेलेबल है नाउअडेज. इंडिया के अंदर कुछ साल पहले तक पेटेंट नहीं होती थी, बट नाउअडेज ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सो मेनी पेटेंट्स. अभी नाउअडेज पेटेंट हैज बिकम वेरी कॉमन. दिस इज अ बिग गवर्नमेंट ग्रांट्स व्हिच हैव बीन टेकन अप. इसमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंडिया रिसर्च सेंटर है, काफी अच्छी ग्रांट्स देता है. थिंक इंडिया इज अ वेरी गुड कंसेप्ट. ये सारे कंसेप्ट जो 2016, 17, 18 में काफी चले थे, अभी भी चल रहे हैं. ये आप देखोगे इंस्टाग्राम पे काफी अच्छी इमेज घूमती रहती है. दिस इज हाउ द बिजनेस स्टार्ट्स, हाउ द थिंग्स गोज ऑन. बट लेट मी टेल यू वन थिंग. मैं जितने भी अगर आपको करियर बनाना है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे सारी चीजें दी की ऑथेंटिक नहीं होती है. सो हैव अ क्लियर लुक ओवर द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. ये इमेज मैंने यहाँ पे इसलिए प्लेस की, कहीं ना 80% चीजें इसमें राइट कही गई है. हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, द वे इट इज बीन मोबिलाइज, द वे इट इज द फ्लो चार्ट इज गिवन, इट इज क्वाइट राइट. आपके पास बिजनेस प्लान है, आप प्रोडक्ट को चेक करो कि आपकी प्रोडक्ट कितनी परफेक्ट है. फिर आप अपना सेक्टर्स देखो, स्ट्रक्चर्स देखो, कितने आप आगे जा सकते हो, कंपनी का स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट की प्रोसेस देखो, फिर लॉन्च करो. और देयर इज एन एग्जिट स्ट्रेटजी. अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो, बड़े बड़े कंपनीज को, तो स्टॉक मार्केट से कैसे एग्जिट होते हैं. अभी मैं बात करूं, देयर इज अ वेरी स्टार्टअप इन गांधीनगर, टॉर्चिट. सारथी उस डिवाइस का नाम है, टॉर्चिट कंपनी का नाम है. It has been got incubation and mentorship at PDPU, IIC. बंदे का नाम हनी है, हनी चंदानी. The guy is very young and dynamic. उसकी एज मुझसे भी कम है, एंड उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया, एक स्टिक बनाई है. स्टिक के अंदर एक ऐसा डिवाइस फिट कर सकते हो जो लोग देख नहीं सकते. स्पेशल एबल्ड पीपल जो देख नहीं सकते, उनके आगे अगर कुछ भी आता है तो वो स्टिक के अंदर वो डिवाइस अगर फिट होगा तो वाइब्रेशन फील होगा. सो इट कैन प्रोटेक्ट द ब्लाइंड पीपल टू गेट क्रिएशंस, मतलब को लग ना जाए. सबसे बेस्ट बात इस डिवाइस की है, अगर ब्लाइंड पीपल है तो डिवाइस गिर भी जाएगा, टूट भी जाएगा. द बेस्ट पार्ट ऑफ द डिवाइस इज कि इस डिवाइस के अंदर एक भी स्क्रू नहीं है. अगेन रिपीट, देयर इज नो स्क्रू इन द होल डिवाइस. There is no screw in the whole device. And इसका कॉस्टिंग भी काफी कम है. अब उस बंदे ने कैसे किया, the way he has marketed his product, उसको पता था कि उसका कस्टमर अलग है and the consumer is different. उसे पैसा कौन देगा? The government will give the money and the product will go to the blind people, the specially able people. So the customer is different and the consumer is different. So you should know before starting a business, before starting a career into this, okay, who would be your customer, who would be your consumer. We live in a state where a state comes from Mahatma to the Modis. पहले concept मम्मीज मार्केटिंग, अभी concept है मोदीज मार्केटिंग. आपकी मम्मी घर पे देखो, પટેલ સાહેબ ગિરીશ સર કદાચ જોતા હશે, ઘરે વાઈફ પૂમો પાડતા હશે કે હું આટલું કામ કરું છું, આમ કરું છું, ખાવાનું બનાવું છું, આ કરું છું. એટલે જે સ્ત્રી હોય ઘરે હંમેશા કહેતા રહેતા કે હું આટલું કામ કરું છું.
if I'm not wrong. એટલે પહેલા concept હતો mommy's marketing, but now the concept is modi's marketing. आप जो भी काम करो उसका मार्केटिंग ना करो, मीनिंग ही नहीं है. जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? So these are tremendous amounts of marketing skills. If you have it, you can do a business. ये प्रॉपर प्लानिंग है आपका. आप मिशन करो कि मुझे ऐसे मार्केटिंग करना है. आपके ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, उद्देश्य बनाओ. आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो आइडेंटिफाई करो. 5C एनालिसिस का फेमस वन, स्वैट पेस्ट, वो भी काफी फेमस है. आपका टीजी टारगेट ग्रुप कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो. आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो. आप फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इट वर्क्स. अग्री करता हूँ, इट वर्क्स. बट द फूड मार्केटिंग, आप घर घर जाके ये टेम्पलेट्स या जो भी आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, आज के दिन में भी उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है. इट हैज अ मोर इम्पोर्टेंस. द कॉस्ट इज डिफरेंट बट इट हैज अ क्वाइट डिफरेंट इम्पोर्टेंस. सो ये प्लान होता है मार्केटिंग के लिए. ये थोड़ा बहुत रेफरेंस था अब तक का, द सेम थिंग. सो हमने अब तक पढ़ा कि व्हाट इज द बिजनेस, इतनी ग्रांट्स अवेलेबल है, मेंटर्स अवेलेबल है, इतने सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है. सो दे ऑल वेर स्मार्ट goals. They were having a smart goals, specific, measurable, attainable, relevant and time frame. अभी मैं बात करूं हनी, जो मेरा फ्रेंड है, उनका स्टार्टअप है वो टॉर्चिट सारथी डिवाइस के अंदर. बट अभी कोविड-19 के अंदर उन्होंने रातों रात एक आइसोलेशन चैम्बर बनाया है, जिन्होंने ही स्टार्टेड टू कम्युनिकेट टू वेरियस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ गुजरात. तो गुजरात तो पॉसिबल नहीं हो पाई, तो वो उसने महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में जाके अपना आइसोलेशन चैम्बर बेच के आया. वो बंदा अभी, मतलब नेबरिंग स्टेट्स में वो बंदा अपने आइसोलेशन चैम्बर बेच के आया. मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप स्केलेबिलिटी पे फोकस करो, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे फोकस करो. अगर आप पंजाब के अंदर बाल की दुकान खोलो, सो इट्स नॉट गोना बी वर्थ. पंजाब ની અંદર હું વાળ કપાવવાની દુકાન ખોલું, ચાલવા નથી. राइट. सो यू शुड नो कि कौन सी चीज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स एंड स्केलेबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. जितना आप अपने आप को जानोगे, अपने आइडिया को जानोगे, आप क्लैरिटी बनाओगे, तब जाके आपको पैसा मिलेगा. एंटरप्रेन्योरशिप पे करियर बनाना है, बिजनेस करना है, तो पहले अपने आइडिया को स्ट्रांग बनाओ, अपने डेटा रिसर्च करो, होमवर्क करो, तब जाके वो पॉसिबल है. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने आइडियाज को पहचानो, तब जाके वो चीज पॉसिबल हो पाएगी. आई विल शो यू वन पीपीटी वेरी क्विकली. एक पीपीटी में आपको दिखाता हूँ, बहुत क्विक में हम जाएंगे. सो न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग. Each and every one persons want to do a business. Each and every persons want to do something business. कि business करना है, so कैसे करना है? Will take you. Just give me a moment. So सबसे पहले there are hundreds of things into the mind. तो आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होगी कि मेरे पास ये आइडिया है, ये आइडिया है, ये आइडिया है, ये आइडिया है. तो फोकस ऑन वन थिंग. मैंने आपको सिखाया बहुत सारे आइडियाज. आइडिया बैंक में से एक आइडिया पे कैसे आना है मैंने आपको सिखाया. इट इज ऑल अबाउट माइंड. बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंड. आजकल की दुनिया में हम दिखाते इट इज ऑल अबाउट शो ऑफ. वेरी लेस पीपल हु कम अप ऑफ थिंग कि आज मेरी तबीयत खराब है. हम अगर आज आपका मूड नहीं है, इट्स ओके. इट्स दैट्स नॉट अ बिग डील. द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड. हम कुछ और दिखाते हैं और होते कुछ और है. सबसे बड़ी गलती जो बिजनेस के अंदर हम करते हैं, वी शो ऑफ. ખીચામાં રૂપિયો ના હોય ને આપણે કરોડની વાત કરીએ કે આપણે ઓફિસ લઈ લીધી છે, આપણે આમ ચાલુ કરી દીધું, પેલું કરી દીધું. બી રિયલિસ્ટિક. વોટ એવર યુ हैव, बी रियलिस्टिक. अगर वो फ्रेंड अगर आपको मदद कर पाया, सो यू नेवर नो
You never know who comes forward and help you. मोबाइल की दुनिया का आइडिया अलग है एंड रियलिटी आइडिया अलग होता है. ये वीडियो हम फिर कभी देखेंगे, but you can do a Google and you can just check the video. A person like Nick is a motivation for the whole globe. The person is also specially able personality, and he has written so many books. He has inspirational videos on YouTube. मैं जब छोटा था तब मैंने इनकी वीडियोस देखी थी. स्विमिंग पूल की जो पहली वीडियो इनकी जो फेमस हुई थी पूरे ग्लोबल पे, वो मैंने देखी थी कहीं ना कहीं, एंड मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ था. मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ. If a person is not having 2 hands, 2 legs, he is facing so many problems to move from one place to another place. उसने अपनी खुद की नॉर्मल लाइफ बनाई है. He has made his own normal life. हम सबको लाइफ के अंदर चेंज लाना है, बट वी ऑल आर कंफ्यूज, अनक्लियर है हम लोग काफी. कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं चलता. व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, देयर इज नो आइडिया. There are many people. Yes, you will get the PPTs at the end. We'll request Harsha to facilitate this thing. I don't mind. You can take these PPTs. Okay. हम सब कंफ्यूज है, क्या करें क्या ना करें. हम सबको लाइफ के अंदर चेंज लाना है, लेकिन कहाँ से, कैसे, कब, हाउ, व्हाई. इट्स वेरी सिंपल. आपको चेंज क्यों लाना है पता है? क्योंकि आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है. You want to make a change to build your future, to make a good future. अगर आपको फ्यूचर में कुछ बदलाव लाने हैं, so you should forget your past. पास्ट में जो भी हुआ आपको भूलना पड़ेगा. अगर मैं अपने फेलियर्स की बात करूं, so there was a launching event of my startup, and because of some changes in the laws, it couldn't occur. So I have a bag of a failure, a huge amount of failures I have. So I always forget the past, but I focus on the future. सर ये तो समझ आएगा कि पास्ट को भूल जाना है, फ्यूचर पे फोकस करना है. कैसे? आपको एक्ट करना पड़ेगा. You should act on the change. You should act on various things. Until and unless you don't act on something, you won't be able to change anything. આપણે ઘરમાં પડ્યા પીપીટી જોઈને સંદીપ મહેશ્વરી કે પછી વિવેક બિંદ્રા કે પછી રાવલ જોઈને આપણે મોટિવેટ થઈ જઈએ છે. પછી શું? આપણે ટીમ બનાવી લઈએ, ફેસબુક પર પેજ બનાવી લઈએ, આપણે પ્રોડક્ટ વેચવાનું ચાલુ કરીએ, પછી શું? You should act to bring a change. हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे करते हैं. हम लोग एक दिन के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, 2 दिन के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, बट देयर हैज टू बी अ फायर विद इन यू ऑल पीपल which should reignite every day. There has to be a fire within everyone which should be reignite every day, because change is a process, not an event. आज मैं मोटिवेट हो गया, बात खत्म. No, it is a continuous process. Change is a continuous process. I can't do it. दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है. अगर निक नाम का बंदा आज पूरी दुनिया को इंस्पायर कर सकता है, तो you can also do it. If Nick can motivate, then you can also do it. Who wants to change? सब हाथ खड़ा करेंगे. बट अगर मैं ऐसा बोलूं, चेंज कौन लाएगा? અરે યાર, આપણે કામની વસ્તુ નથી. ઘર છે, પરિવાર છે, છોકરાઓ છે, આમ છે તેમ છે, બધા બહાના છે. But if I ask you about who wants to lead the change, बहुत कम लोग आगे आएंगे उसके अंदर. Just take a step ahead. The whole crowd will be with you people. आप एक कदम बढ़ाओ, आपके साथ कदम बढ़ाने के लिए लोग साथ में आएंगे. I am pretty sure. ये एक गेम थी जो पॉसिबल नहीं है. ये काफी अच्छी स्लाइड है. एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज एंड चेंज व्हाट यू कैन नॉट एक्सेप्ट. आप जो बदल नहीं सकते, रो ना कर सो કે ઓ માય ગોડ આમ છે તેમ છે, રોજ ના ખાલી ને એક્સેપ્ટ કરી લો.
અને જો એક્સેપ્ટ ના થાય તો એને બદલી નાખો. वेरी सिंपल. जब चेंज लाओगे तो उसका आउटकम क्या आएगा? यू विल हैव अ न्यू गुड एक्सपीरियंस. यू कुड हैव अ न्यू गुड एक्सपीरियंस until and unless you don't bring a change. जो अबे पिछली स्लाइड में आपने एक गेम देखी, वहां पे गेम थी जो पॉसिबल नहीं है जूम मीटिंग के अंदर. वो काफी अच्छी एक हैंडी गेम, उसमें आप सीख सकते हो कि चेंज कैसे लाना है. We'll try somewhere in sessions in your Aravalli or Modasa someday. अभी में अगर आप चेंज लाओगे तो उसका आउटकम में ये आए कि आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. आप चाय बनाते हो, फिर चाय पीते हो, उसके थोड़ी देर के बाद आपके माइंड को असर होती है. सो चेंज विल टेक सम टाइम. ऐसा नहीं कि तुरंत आपको चाय बनाई मतलब आपको असर होना शुरू. आप जब पियोगे, पहले चुस्की लोगे, यू विल टेक वन स्विप, उसके बाद इट विल टेक सम टाइम. A goal without a plan is just a wish. आप PPT बना दो, no meaning. You don't take a hard copy, it's no meaning. A goal without a plan is just a wish. I don't want to change, I want you all to change. अगर आप टीम बनाते हो, आप stubborn हो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. आप एक ऐसे लीडर बनो जो सबकी सुने, सबके साथ आगे बढ़े. एक काफी अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो. आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ. ऑल ग्रेट लीडर्स आर रीडर्स एंड नॉलेज इज द न्यू करन्सी. પૈસાનું મહત્વ છે, નોલેજ એક નવી કરન્સી છે આજની દુનિયાની અંદર. તમે KBC માં જઈને પૈસા કમાઈ શકો છો. યુ કેન ગો ટુ KBC, યુ કેન earn the money if you have a good amount of knowledge. आप चेंज लाओगे तो चेंज लाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. इसके गेम में जो पॉसिबल नहीं है, विल ट्राई सम अदर डे. ये सारी जो गेम्स है, आप कंफर्ट जोन के बाहर आ गए, आपने डेली एक्टिविटीज में चेंज ला दिया, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा. उसके लिए भी ये काफी अच्छी बुक है. यू कैन हैव अ लुक, इंटरनेट पे या फिर Amazon पे अवेलेबल है. सो दिस आर द 7 जहां पे आपको बदलाव लाना है. चेंज, कंफर्ट जोन, क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस को चेंज करना है. कॉम्प्रोमाइज, कुछ चीजें टीम के साथ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है. फिर आती है चॉइस. यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक विथ योर चॉइस. फिर कंस्ट्रक्टिव, आपके मेंटर्स ऐसे होने चाहिए जो आपको, अम्ब्रेला तो हो ही आपके, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. एंड लास्ट इज कनेक्ट. Connect is the most important. You should connect with yourself. Once you get connected with yourself, you will be able to connect with the world. And network is net worth. Let me tell you, my friends, network is net worth. So आपको self discovery करनी है, खुद के पहचानना है. So ये काफी अच्छी इमेज है. फिर हम बैक टू द ओल्ड PPT. आपके पेरेंट्स को क्या लगता है कि मेरा बेटा एकदम गाय जैसा है या मेरी बेटी एकदम गाय जैसी सीधी सादी है? आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को क्या लगता है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बॉडी बिल्डर या मेरी गर्लफ्रेंड काफी अच्छी दिखती है? आपका छोटा भाई क्या दिखता है? मेरा बड़ा भाई या मेरी बड़ी बहन कुछ करते नहीं है, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर. और आपके पास रिलेशनशिप पर्सन को क्या लगता है कि देखो यार मेरे साथ था तब तो अच्छा नहीं था, आपने को बॉडी बना ली है. मतलब ईच एंड एवरी पर्सन have a different perspectives about you in a different relationships. ये है the looking glass self phenomena. अगर मैं बात करूँ, पटेल सर एड्रेस मी एज सर, गिरीश सर एड्रेस मी एज सर, and I also same thing. Harsh and me are friend. Chintan and me are friend. And the people who are the audience, I respect them, they respect me. So this is a different scenario. But if I talk about my family members, तो मेरा भाई चिल्ला रहा है कि यार मेरे CA की एग्जाम आ रही है जुलाई में, तो लैपटॉप लेके बैठ गया, अपना लेक्चर शुरू कर दिया. सो ही हैज अ डिफरेंट इमेज फॉर मी. ही हैज अ डिफरेंट इमेज फॉर मी. तो आपको पहचानना है कि किसके माइंड में आपकी इमेज कैसी है. अ पर्सन लाइक मोदी जी इज अमेजिंग पर्सनालिटी, बट उसकी इमेज राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने, नेबरिंग कंट्रीज के सामने डिफरेंट है.
So you should know what is your image to different persons. अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके और હું એમએલ ગાંધી કોલેજમાં બીએસસી કરું છું કે ભાઈ હું તે બીએમ શાહ કોલેજમાં બીફાર્મ કે એમફાર્મ કરું છું. આઈ એમ ધ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ ઓફ હોલ ગુજરાત યુનિવર્સિટી કે જીટીયુ ને હું રેન્કર છું. પણ આ વસ્તુ ઇન્વેસ્ટરને મેટર કરે છે? The answer would be a big no. ઇન્વેસ્ટરને તો ખબર જ નથી તમે કોણ છો. તમે કહો છો તમારો રેન્ક આવ્યો, આમ આવ્યો. He is least bothered. He is just concerned with your idea. તમારો આઈડિયા શું છે, એમાં એને કેટલા પૈસા મળશે. So identify what you are. ઘણા લોકો કંઈક અલગ હોય, સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ પર અલગ હોય. ઘણા લોકો પોતાને કંઈક અલગ રીતે જોતા હોય. There are many people who see themselves as a different thing. We all are wearing a mask on the face. Remove the mask. अगर आप मास्क को रिमूव नहीं करोगे तो एक दिन ये चीज आएगी पक्का. This will happen with you people. One day this will happen with you people. So we'll quickly move towards. आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप सभी को गुस्सा आता है. If you see अजय देवगन वाला गुस्सा, so he was completely matured. जब गुस्सा आना चाहिए तब आता था, लेकिन हमें गुस्सा कौन सा आता है? वो बच्चे वाला जो कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी तोड़ जाता है. चाहे इंट्राप्रेन्योर हो, मतलब जॉब कर रहे हो, या एंटरप्रेन्योर हो, या बिजनेसमैन हो, कहीं भी हर किसी इंसान को गुस्सा आता है. बट कौन से टाइप वाला गुस्सा आना चाहिए, गुस्से के अंदर कैसे हैंडल करना. मतलब अजय देवगन वाला जब उसे गुस्सा आता था बहुत स्मार्टली वो हैंडल करता था. आता माझी सटकली ही साउंड्स लाइक दैट. उस पर काफी अच्छी गेम है जो कभी और दिन सीख पाएंगे हम लोग. So what is life? Now you tell me. दुनिया में लोग जनते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, चलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी या धंधा करते हैं, शादी करते हैं, फिर मर जाते हैं. यही करना है क्या? No. There is something more than this. Life could be far different if you make it. Until and unless you don't inspire some other people, there is no meaning to your life. If you don't inspire, your words don't sound inspirational to someone, then there is no meaning. अगर आपको लाइफ में बिजनेस करना हो या कुछ भी चाहिए आपको, या फिर इवन आप नौकरी कर रहे हो, तो आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए, इनर पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए. इफ यू आर नॉट डूइंग इट, देयर इज नो मीनिंग. लास्ट वेरी क्विक मोटिवेशन. नो वन कैन मोटिवेट यू अंटिल यू मोटिवेट योरसेल्फ. ये वाला जो देख रहे हो, ये बंदा बोल रहा है ये मेरा सच है, ये बंदा बोल रहा है ये मेरा सच है. Just because you are right doesn't mean that another person is wrong. इसके लिए ये 6 है, इसके लिए 9 है. मतलब सबके लिए सिनेरियो अलग अलग होता है. Every person has a different shoe size. This is the right age to make a career. But if a Boman Irani can start or enter the Bollywood at an age of 43, if a bowler can make IPL career at an age of 42, then you can do anything. But trust on God. भगवान ऊपर विश्वास रखो, ईश्वर अल्लाह पर विश्वास रखो. You will get a definitely success. कर भला होगा भला. Very inspirational thing. सेल्फी ले निकालना सेकंड्स का काम है, इमेज बनाना जिंदगी गुजर जाती है. We waste our time on social networking sites. लोग सक्सेस को क्या देखते हैं? This is what the people see success. But the reality is this one. This is the iceberg phenomena. अगर आज पापा ने, आपके पापा ने, जब आप छोटे थे जब झाड़ उगाया था, एक सैपलिंग को प्लांट किया था, तब जाके आप अपने ग्रैंडसन को या अपने चाइल्ड को उस झाड़ पे झूला झूला सकते थे. सो थिंग्स टेक टाइम, हैव पेशेंस. शुरू किया है, सबका स्टार्टअप स्विगी या जोमेटो नहीं है. थिंग्स विल टेक टाइम. If I talk about Adani, if I talk about Reliance, it took 40-50 years. Reliance was started by Dhirubhai and Mukesh ji and Anil ji. Anil bhai and Dhirubhai, now Anil bhai and Mukesh ji are enjoying. Adani has started a business since a long back time. Their children are enjoying nowadays. See, लोगों का काम है कुछ ना कुछ तो कहना. Don't worry about the world. Don't worry about the globe. You do what you like, but start working from today.
स्टार्ट फ्रॉम टुडे. आज करे से काल करे से परसों, फिर तो पता नहीं परसों कब आएगा, धन्ना बौरी करेगा कब. तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे. हंसते रहो, खुश रहो. ओके. एंड don't waste your time on social networking sites. Okay. So take care of yourself. Government is funding you lots of amount, and there are lots of mentors also nowadays available who have the experience. There are two kinds of mentors nowadays available. One is who have a experience of business, and second one who are into academics. They are the partial entrepreneurs, and also a huge amount of failures also. There are both persons are available in the market. Now it's up to you how you choose it. At any age you can start your business. आज ना युवा एक वायु, युवा को अगर उल्टा करते तो वायु बनता है. If we turn the युवा word, it becomes vayu. So anyone can be a युवा, anyone can be a youth. It is all about how you start your business. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. आइडिया है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर कॉन्फिडेंस है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, अगर सही मायने में बिजनेस करना है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, सरकार की ग्रांट लेना आता है, कॉन्टेक्ट बनाना आता है, तब जाके आप काम कर पाओगे. अदरवाइज इट वोंट मेक अ सक्सेसफुल लाइफ इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. अदरवाइज इट वोंट मेक अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप. टीम, together everyone achieves more. A team where together everyone achieves more. आप अकेले कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स सेटिस्फाई करना है अपनी टीम के, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे. एंड लास्ट, द 7 mantras ऑफ द सेशन. ABCDEFG आगे भी है, इट इज अप टू Z, but we'll see the 7 mantras. A for attitude and accountability. आप जो भी काम करते हो उसका हिसाब रखो. आज के दिन के अंदर मैंने इतने लोगों को मिलने का प्लान बनाया था. tentative plan was this. I couldn't meet because of this reason. You should jot down each and everything. So you should have accounts of each and every small thing. And second is your attitude, which can make a change. Second, A में एटीट्यूड एंड अकाउंटेबिलिटी आता है. सेकेंड B, बिजनेस प्लान. आपका बिजनेस प्लान जितना अट्रैक्टिव बनाओगे उतना आपका एंटरप्रेन्योरशिप करियर आगे बढ़ेगा. C is connect. You should connect with yourself and the world. I again say yourself and the world. Network is network. आपका जितना नेटवर्क होगा उतना ही आपकी नेटवर्क होगी. D is direction, then evolution, finance, and the goals. आप शाबाशी गेम घर पे खेल सकते हो. You can just fold your right hand and you can tap on your back for listening me. Thank you so much everyone. I hope I have not bored you. मैंने आपको बोर नहीं किया है. We'll take a question answer now. She asked that how to focus on one idea. It's a very simple thing. Nowadays people are having so many ideas. You enlist all your ideas and try to identify which is a realistic idea and which you can start first. आपके पास जो भी बजट अवेलेबल है उसमें से आप कौन सा आइडिया सबसे पहले शुरू कर सकते हो. ये नहीं कि मुझे ये आइडिया पसंद है, इसमें मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. जिसमें सबसे बेस्ट टीम अवेलेबल हो, फाइनेंस अवेलेबल हो, उससे आप शुरुआत करो. वंस यू विल स्टार्ट, you never know, you start having your ideas. So this was the answer to Priya. एक और एक क्वेश्चन था कि स्कूल सेक्टर के अंदर कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, प्री स्कूल्स के अंदर. सो इट्स इन बिजनेस. आई वुड लाइक टू टेल यू, इन टुडेज सेक्टर जितने भी स्टार्टअप्स है वो अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए उतने अभी पॉसिबल नहीं है.
अभी के जितने भी आपको बिजनेस से स्टार्टअप्स करने हो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए ही पॉसिबल है. ये स्टार्टअप इज नॉट पॉसिबल. स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं, जितने भी स्टार्टअप हम देखेंगे आज के दिन में, सो वो पॉसिबल ही नहीं है आज. अगर मैं बात करूं, आपको अगर स्कूल में बिजनेस करना है, सो यू कैन, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप डायरेक्ट 10th या 12th की स्कूल स्टार्ट कर दो. इवन आई एम ऑल्सो थिंकिंग फॉर द सेम थिंग, बट यू शुड स्टार्ट विथ योर बेसिक, लाइक junior KG, senior KG, then you can move forward towards various different things. उसके बाद ही आप स्लोली एंड सडनली ग्रोथ कर पाओगे. स्कूल्स के अंदर आप सारी फैसिलिटीज दे पाओ स्टूडेंट्स को इन लेस अमाउंट ऑफ व्हाट आई कैन से, बिकॉज अभी की बात करें छोटे स्कूल्स में, प्री स्कूल्स की फीस 50,000, 1 लाख. मैं जहाँ पे रहता हूँ नियर बाय में जितनी स्कूल आती है, I see this fee starts with 45K. So, but मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, people can afford. But what about my friends who live in nearby areas? Majority of them cannot afford. So, कुछ चीजें affordability में होती है. गोपाल की बात करो, गोपाल जो बड़ा वाटका आवे છે આજકાલ, so ગોપાલ વાટકાનું સેલિંગ સડનલી વધી ગયું છે. ગોપાલ બ્રાન્ડ છે, નો ડાઉટ, બટ બાલાજી કરતે એટલું નામ સારું નથી, બટ સડનલી વધી ગયું છે. કેમ? ક્વોન્ટિટી મળે છે અને प्राइस में होती है 5 रुपए. Sometimes price matters a lot. There's a question: what type of small scale business can be started in village at a ground level? काफी सारा काम करना चाहता है. एज अ ग्राउंड लेवल वर्कर आई हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स. आप वुमेन को एंटरप्रेन्योर बना दो विलेज के अंदर. जितने भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है विलेज के अंदर, उनको एंटरप्रेन्योर बनाओ तो ये चीजें आगे बढ़ पाएगी. और विलेज की स्कूल्स के अंदर अगर आप टीचर्स का साथ लेते हो, विलेज में जो बेस्ट पार्ट है ना, कि वहाँ के टीचर्स को भगवान माना जाता है. वहाँ के एकेडमिशियंस को वो सही मायने में फॉलो करते हैं. वो चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, गांव के सरपंच ही क्यों ना हो, किसी भी विलेज में के अंदर स्कूल के एकेडमिशियन जितने भी, उन सभी को दे प्रे अ लॉट, दे बिलीव अ लॉट, दे प्रेज अ लॉट. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा. I cannot share what you can start. It's up to you. You need to find what you wanted to start. But अगर आपको विलेज के अंदर स्टार्ट करना है, so विलेज के अंदर अभी ग्रोसरी स्टोर्स का आई थिंक हाटी मार्ट का एक बिजनेस है जो ग्रोसरी स्टोर्स को रिमोट एरियाज में चलाता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, मेल एंड फीमेल को. जो काफी अच्छा सक्सेसफुल मॉडल है. you can connect on Facebook and Google. हाटी मार्ट, HEARTY, हाटी मार्ट करके काफी अच्छा फेमस ग्रोसरी स्टोर है रूरल और रिमोट एरियाज के अंदर. सो दीपक सर कैन लुक आउट एट देयर पॉलिसीज. मंजूल सर का क्वेश्चन होगा बिजनेस इंक्यूबेटर. मैम, दैट्स वन ऑफ द, आई थिंक यू आर फ्रॉम LDRT, सो आई वुड लाइक टू शेयर कि आई एम आल्सो द एलुमनाई ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, व्हाटएवर प्लेटफॉर्म आई गॉट टू द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द एकेडमिशियंस, इट हैज प्लेड अ वाइटल रोल. अगर मैं बात करूं मेरी यूनिवर्सिटी के एकेडमिशियंस की, सो हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर था, इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर कृति पटेल मैम. शी वाज हेडिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल. उन्होंने पूरा एजुकेशन लिया, द मेंटरशिप एंड गाइडेंस ऑफ वेरियस पीपल्स, एंड शी टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल. आज मैं बात करूं, शी हैज इंस्पायर्ड सो मेनी पीपल. भाविन सर ने काफी बच्चों को इंस्पायर किया है. तो उन्होंने ट्रेनिंग ली थी. सो ट्रेनिंग जितने भी एकेडमिशियंस है, नो दे आर गुड इन टेक्निकल नॉलेज, जो भी डिलीवर करते हो इस रिस्पेक्टिव एनी डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और कॉमर्स, साइंस. बट आजकल एक एक्सपीरियंस के साथ टीचर्स अच्छे ओरिएंटेड स्पीकर्स भी बन जाते हैं, बट स्लोली स्टडीली दे शुड डेवलप देयर नॉलेज इन टर्म्स ऑफ entrepreneurship also. They should develop their knowledge in entrepreneurship sector also. So majority of the academicians from my university, they took the training from Vadwani Foundation, NEN, and फिर ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था. And they played a very big role. Academics plays a very, very big role, I think. I would like to thank to Harsh sir, Chintan sir, and the whole team, SSIP, Gujkos, and
PT Science College and the trust, Patel sir and definitely Girish sir, who made this.